Good morning, students. So, this is our today's maths class. Welcome all. I hope all are good and fine and enjoying their holidays. In this exercise, this is the last exercise of our today's of our maths lecture of our maths topic. This is last exercise of this mensuration chapter, area and volume, area and perimeter. In this chapter, in this exercise, area of trapezium, area of rhombus, area of quadrilateral. These things we are going to do. Now, I will tell you the formula side by side when we are using in the sums. For example, in the first sum, which formula we are using, I will tell you first. Then again, in the next, I will tell you next. Now the first sum is a rectangular lawn of length 50 meter and breadth 30 meter is to be surrounded externally by a path which is 2 meter wide. Now in this exercise we have two types of sums, like one here is a path, like this is rectangle, here is path externally, internally. Externally means bahar, out, outside. Internally means अंदर को जाके अंदर की तरफ. Okay. Now in this externally, first is length. It means internal rectangle have the length 50 meter and breadth 30 meter, and it is surrounded externally by a path which is 2 meter wide. Means ये 2 meter है हमारे पास. Here is also 2 meter. On all four sides there is 2 meter, 2 meter. Okay. So find the area of paths. This paths area we have to find this one. Understand? This one path which is outer. This area we need to find. For that, we will find the outer area, inner area, and we will subtract it, and then we will got it. Firstly, length. Length of lawn is given, that is 15 meter. It means this is inner length and inner breadth. Inner length means अंदर वाली rectangle की ये length है, ये अंदर वाली जो डायग्राम में दिख रहा है आपको, उसमें अंदर वाली rectangle की breadth है. Then outer length, how we will find 50 to this side, to this side. This full length includes na that 2 meter, 2 meter. It means this is 54 meter outer length. Similarly, outer breadth we will add again 32 plus 2. Outer means बाहर, inner means अंदर. अगर तो सराउंड एक्सटर्नली है तो आउटर लेंथ हमें निकालनी पड़ेगी प्लस करके. अगर होता पाथ अंदर बना है, लॉन के अंदर से ही कटा है, तो हमें इनर लेंथ, इनर ब्रेड्थ निकालनी पड़ेगी माइनस करके. नाउ व्हाट टू फाइंड? एरिया ऑफ path. Which path we have left here of white color, that is area we have to find. So outer area minus inner area. outer area में से आप लोग inner area को माइनस कर दोगे. अब रेक्टेंगल का एरिया L into B. This is 50 into 30 inner length. outer आएगा 54, 34. We will subtract. We will find 54 into 34, that is 1836. You can multiply and then you can
subtract, that is 336 meter square, that is area of path. Outer area minus inner area. Inner area means the rectangle given and it is surrounded externally by a path which is 2 meter wide. Outer length, outer breadth we have found, and then we will subtract the areas and we will got the area of path. Understand? I hope you all understand. So moving towards the second, two crossroads. Now this is little bit different. Wait, sorry. First thing क्या है? First is given one rectangular park, that is given two crossroads. Crossroads का मतलब है कि उसके सेंटर में से दो रोड्स ऐसे निकाल दी. क्लियर? बोथ 2 मीटर वाइड मीन्स इनकी ब्रेड्थ जो है दैट इज 2 मीटर. Run at right angles through the center of rectangular park. Now length of park is 64 meter, breadth is 38 meter, such that each is parallel to one of the sides of the rectangle. Find the area of roads. Also find the area of remaining part of the park. First thing, we have to find the area of roads. Now, firstly, area of crossroads. If we see that one strip is like this way, other strip is like this way, this area is being doubled. ये दो बार आ रहा है दोनों में, इस साइड भी इस साइड भी. अब हमने जब एरिया ऑफ रोड्स, एरिया ऑफ क्रॉस रोड्स निकालना है तो हम क्या करेंगे, ये जो दो रेक्टेंगल्स हैं इसका एरिया 64 इंटू 2 प्लस 38 इंटू 2, बिकॉज इट इज डबल्ड, दो बार कंसीडर हो चुका है तो हमने तो एरिया निकालना है, तो हम इसको दो बार निकाला है तो हमें यहाँ पे स्क्वायर बन रहा है ना, 2/2 का स्क्वायर बन गया है, उसका एरिया हमने ये जो सब्ट्रैक्ट कर देना है. तो 64 2 जा 128, 38 2 जा 76 माइनस 4, इनको ऐड करके सब्ट्रैक्ट करके 204 सॉरी माइनस 4 200 आपके पास आ गया. क्लियर? दिस इज एरिया ऑफ क्रॉस रोड्स. Why we have subtract? Because it is doubled. 2 times it appear. That's why we subtract one time. Not 2 times we subtract. We subtract it only one time. Clear? So we will add these two rectangles area and we will subtract one square. Now also find the remaining part of the circle. Now we found the area of crossroads. We will find the area of park. पहले टोटल एरिया 64 इंटू 38, तो वो आपके पास आफ्टर मल्टीप्लाई 2432 दिस कम. नाउ वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट. ये टोटल आ गया. रिमेनिंग आई थिंक यू कैन फाइंड. रिमेनिंग पार्ट कैसे निकालोगे? टोटल एरिया माइनस एरिया ऑफ क्रॉस रोड्स, माइनस 200 कर दिया. 2232 इज आंसर. क्लियर? लिटिल बिट you one time you will listen from this. If you have any problem you can see the video, and then if you have problem we will discuss in the classroom. I will explain again. Okay, so moving towards the third sum. One square park is given. Firstly I am trying to draw one square properly.
with each of its sides 100. कितनी साइड है इसकी? 100. A road 5 meter wide is made all around the garden outside. ये वर्ड आपका इम्पोर्टेंट है कि आउटसाइड बोला है, इनसाइड बोला. अब स्क्वायर पार्क है, उसके आउटसाइड ऐसे ऐसे उन्होंने रोड बनाई है पार्क के आउटसाइड. कितनी है वाइड? 5 मीटर. तो इधर को भी 5 मीटर है. इट मीन्स वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ रोड. तो सेम, पहले इनर लेंथ, यहाँ पे तो स्क्वायर है, तो इनर साइड वी विल राइट, दैट इज 100 मीटर. आउटर साइड, अब देखो बेटा, 2 times वी आर एडिंग 5 दिस वे, 5 दिस वे. तो 5 plus 5 means we will add 10 2 times, because this side both including in this length, na? Full length. Clear? Outer side is 110 meter. Now we need to find area of road, that is outer area, same, minus, इफ वी आर राइटिंग, लिखने को तो मैं बहुत लंबा चौड़ा प्रॉपर ऐसे लिख दूंगी. इसको ABCD मान लिया, इसको PQRS मान लिया, उसको सब्ट्रैक्ट किया एरिया ऑफ ABCD माइनस एरिया ऑफ PQRS, देन वी विल गो एट द एरिया ऑफ दैट. दैट इज लिटिल बिट क्वाइट कंफ्यूजिंग एंड आई होप कि वो ABCD के चक्कर में आप उलझ जाओगे. तो मैंने आपको सिंपल कॉन्सेप्ट बताया है. आउटसाइड है तो ये पूरा एरिया आ गया आपका, उसमें इंक्लूड आउटर एरिया. इनर एरिया मतलब जो स्क्वायर था उसका एरिया. अब आउटर एरिया, आउटर साइड कितनी है? 110. एरिया वी नो, साइड इंटू साइड, तो 110 इंटू 100 माइनस 100 इंटू 100. ये आपके आ गया 11 11 121 माइनस 4 zeros with this one, तो ये आपका आ गया 2100 meter square. This is the area of road. Clear? Simple thing. Simple हम सारे सम ऐसे ही करेंगे. Outer minus inner. With my method. If you find it difficult, you can go with any method. I have no problem. ABCD लेके करना है तो वो कर सकते हैं. जैसे इसको ABCD ऐसे मान लिया, अंदर वाले को वो माना, फिर उसको सब्ट्रैक्ट ऐड किया, ये वाली साइड इतनी, वो वाली साइड इतनी, ऐसे लिख लुक के, दैट इज ऑल्सो ओके. बट ये मेरा सिंपल बनाया मैंने कि इनर आउटर करके माइनस कर दो, ऐड कर दो, जो भी करना है कर दो. क्लियर? आई होप यू ऑल क्लियर विद दिस सम ऑल्सो. गोइंग टू नेक्स्ट सम, फोर्थ सम. Here is diagram given. Inside a rectangular garden. Now inside what is there? Rectangle is 24 into 18. 2 meter margin is left for planting tulip flower. अब उन्होंने, जैसे हम क्यारियां बनाते हैं, फ्लावर्स लगाते हैं बना के, उसके लिए एरिया छोड़ा हुआ है. उन्होंने नेम भी बताया है फ्लावर का कि ट्यूलिप फ्लावर्स, ट्यूलिप स्टेम्स कैन बी प्लांटेड. उसने वो करना है. तो हम पहले क्या करेंगे? पहले हम उसका एरिया निकालेंगे, कितने एरिया में फ्लावर्स लगाने हैं. तो फॉर दैट अब हमें आउटर लेंथ ये गिवन है 24 मीटर. अब हमें आउटर ब्रेड्थ भी गिवन है 18 मीटर. हम निकालेंगे इनर लेंथ. इनर लेंथ कैसे निकालेंगे? ये जो 2 है भाई, ये भी 2 पड़ा है, ये भी 2 है, तो इधर को भी 2 ही है. तो ये 24 में से 2 टाइम्स माइनस होगा, जे बच गया 20 मीटर. अब इनर ब्रेड्थ की टर्न है. 18 में से भी 4 ही माइनस करेंगे, 2 दैट साइड, 2 दैट साइड, तो हमारे पास आ गया 14 मीटर. आई होप क्लियर अप टू दिस. सेम
एरिया ऑफ पाथ, एरिया ऑफ रोड, एरिया फॉर फ्लावर्स। निकालना तो वही है ना, साइड वाली बाउंड्री का एरिया। सेम आउटर एरिया माइनस इनर एरिया। आउटर एरिया 24 इंटू 18, इनर हो गया 20 इंटू 14। अब मल्टीप्लाई का तो क्या है भाई, आती है आपको। 432 माइनस 280 तो आ गया आपके पास 152 मीटर स्क्वायर। अब आपने निकाल लिया एरिया फॉर फ्लावर, सेम आउटर एरिया इनर एरिया करके, जो कि आपको अब तक क्लियर हो गया होगा कि कैसे आउटर कैसे इनर किसको बोलते हैं। ओके, तो अब है कि 4 ट्यूलिप स्टेम्स कैन बी प्लांटेड इन 1 मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर में कितने बन गए, 4 ट्यूलिप फ्लावर्स। तो हमारे पास तो एरिया है 152 मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर में 4 लगा दिए तो 152 में क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई। तो 608 ट्यूलिप फ्लावर्स, ट्यूलिप स्टेम्स उसने लगा दिए। ट्यूलिप स्टेम का मतलब समझते, स्टेम मीन्स द प्लांट, द तना जैसे बोलते हैं उसको आप हिंदी में, दैट इज प्लांटेड। ओके, आई होप यू हैव क्लियर विद दिस सम आल्सो। Fifth sum. Now our fifth sum, dimensions of rectangular plot. Again we need to make one rectangle. Dimensions means length, breadth, which is longer that is length, which is smaller that is breadth. Now length is 35 meter, breadth is 20 meter. पाथ यूनिफॉर्म ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ मींस इक्वली है, सभी जगह पे 2-2 मीटर है। मोल्ड अलोंग द बॉर्डर एंड इनसाइड। अगेन अब आ गया इनसाइड। इनसाइड ऐसे ऐसे करके आपके पास ये हो गया 2 मीटर वाइड। हाँ बन गया हमारा। यहाँ पे भी 2 मीटर है, यहाँ इधर से भी ऑल 2-2 मीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेविंग द पाथ। और पहले तो पाथ का एरिया निकालना पड़ेगा। सेम आपका गया, इट मीन्स इनसाइड है तो आउटर लेंथ गिवन है 35 मीटर, तो ब्रेड्थ भी तो आउटर ही गिवन है अगर लेंथ आउटर है, दैट इज 20 मीटर। अब हम निकाल लेते हैं इनर लेंथ। इनर लेंथ सेम 35 में से 2 टाइम्स 2 माइनस हो जाएगा तो आपके पास आ गया 31 मीटर। सेम इनर ब्रेड्थ 20 में से 2 टाइम्स 2 को माइनस करेंगे 16 मीटर आ गया। नाउ एरिया ऑफ पाथ, एरिया ऑफ पाथ निकालोगे जैसे मैंने पहले किया है, आउटर एरिया माइनस इनर एरिया, तो बच जाएगा ना जो एरिया वो पाथ का आ गया। आउटर आ जाएगा 35 इंटू 20 माइनस इनर आ जाएगा 31 इंटू 16, 35 टू 70, 700, 31 इंटू 16 आ गया हमारे पास। आप मल्टीप्लाई करके देख लेना, 496 आया मेरे पास। तो दिस इज 204 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ पाथ निकाल लिया। नाउ कॉस्ट ऑफ पेविंग द पाथ विद ब्रिक्स एट 1 मीटर स्क्वायर का क्या कॉस्ट है, इसका क्या कॉस्ट है हमारे पास 25 पर स्क्वायर मीटर। कॉस्ट पेविंग द पाथ विद ब्रिक्स मीन्स ईंटें लगानी है, वहां पे टाइल्स लगानी है, कुछ लगाना है उसमें। कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर, पाथ के लिए 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट है 25। तो हमारे पास एरिया ऑफ पाथ कितना है, उसका उतने एरिया के लिए निकालेंगे ना 204 मीटर स्क्वायर के लिए। उसको 204 को आप कर लोगे मल्टीप्लाई, जो आंसर आ गया आपके पास वो आपके पास आपका आ जाएगा उतना कॉस्ट। एंड ऑल्सो द कॉस्ट ऑफ कवरिंग द रिमेनिंग पार्ट ऑफ प्लॉट विद ग्रास। अब हमने एरिया ऑफ पाथ निकाल लिया है, हमें निकालना है रिमेनिंग। रिमेनिंग मतलब समझते हो कि जो बच गया,
तो टोटल एरिया आ गया 35 इंटू 20, इसमें से माइनस कर देते हैं पाथ का 204, मीन्स 700 में से 204 माइनस किया तो 496 आ जाएगा। अगेन इसके लिए जो बच गया इस पे ग्रास लगानी है। ग्रास का 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट है 19 रुपीज, तो ये जो बचा है 496, उसका 496 को आप 19 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो ये आपके पास आगे रिमेनिंग पार्ट का जो भी आपने लगाना है उस पे ग्रास, उसका वो आपका कॉस्ट आ जाएगा। मल्टीप्लाई आपने करनी है, खुद से करनी है, देन वी विल टेल यू द आंसर्स इन द क्लासरूम। पाथ एरिया क्लियर समझ गया, आउटर एरिया माइनस इनर एरिया। अब कॉस्ट है तो भाई पाथ की निकालनी है तो कॉस्ट जितना उसका लीड दिया है आपको उसके हिसाब से आप मल्टीप्लाई कर दो। जैसे 25 दिया है तो वी हैव मल्टीप्लाइड विद 25, रिमेनिंग पार्ट का पहले एरिया निकालोगे, फिर ही रिमेनिंग पार्ट में क्रॉस लगाओगे। क्लियर? ओके, सो नेक्स्ट sixth sum here is that red carpet gone black. ओके, तो रेड की जगह पे हम ब्लैक पढ़ सकते हैं यहाँ पे, बिकॉज अपने डायग्राम में ये ब्लैक है। कारपेट 12 मीटर लॉन्ग 1.5 मीटर वाइड is kept for welcoming foreign dignitaries and heads of state. एक उन्होंने ऐसे रेड कारपेट बनाया। क्लियर? लेंथ 12 है, ब्रेड्थ क्या है 1.5। क्लियर? 10 सेंटीमीटर वाइड बॉर्डर रन्स पैरेलल टू द लेंथ। अब ये जो लेंथ है ये वाली जो भी है वो वाला है 10 सेंटीमीटर, एंड along the width of one edge border is 25 centimeter and on the other side 0.5। तो ये आपके पास जहाँ पे वेलकम लिखा है ये जो पार्ट है ये 0.5 मीटर है, यहाँ पे वेलकम लिखा है। ये जो दूसरी साइड है ये है 25, इधर वाला ये वाला 25 सेंटीमीटर। ये जो दोनों लेंथ वाइज है ये है आपके पास 10 सेंटीमीटर। अब लेंथ ब्रेड्थ मीटर में दी है, ये वाले सेंटीमीटर में दिए हैं, तो हमें इसका निकालना पड़ेगा। अब पहले तो हम लिखते हैं जो गिवन है, मींस आउटर लेंथ गिवन है 12 मीटर, पूरी लेंथ तो 12 मीटर है, पूरी ब्रेड्थ विड्थ दैट इज 1.5 मीटर। अब हमें निकालनी है इनर। इनर मीन्स जो ब्लैक वाला पोर्शन है उसकी लेंथ। अब लेंथ वाली साइड में से एक तो आपका माइनस होगा 0.5 मीटर डायरेक्टली, एक आपका माइनस होगा 25 सेंटीमीटर। अब 25 सेंटीमीटर को ओवर 100 लगा के मीटर बना लेते हैं, तो ये आपका आ गया 12 माइनस 0.5 माइनस 0.25, ये दोनों मिलके बन गए 12 माइनस 0.75 मीटर, ये बन गया आपके पास 11.25 मीटर। ये आपकी आ गई इनर लेंथ। क्लियर कि ये वाला हमने निकाल दिया, एक तो एक ये वाला, एक 0.5 मीटर, हाफ मीटर, एक 25 सेंटीमीटर, उसका बन गया आपके पास 0.25 मीटर। ओके, बिकॉज 1 मीटर 100 सेंटीमीटर। ओके, अप टू दिस क्लियर? नाउ इनर ब्रेड्थ, ब्रेड्थ दोनों साइड पे सेम ही कट हो रही है, कितनी 10 सेंटीमीटर, 2 टाइम्स 10 सेंटीमीटर मीन्स 1.5 में से हम निकालेंगे 20 सेंटीमीटर। ये आपके पास आ गया इसको ओवर 100 लगाओगे 0.220 आ गया, 1.30 मीटर आपके पास बच गया। क्लियर? अब आप निकाल सकते हो एरिया ऑफ बॉर्डर। बॉर्डर का एरिया निकालना है, सेम पाथ ही बन गया। एरिया ऑफ बॉर्डर लगाओगे आउटर एरिया माइनस इनर एरिया, आउटर लेंथ 12 मीटर
आउटर ब्रेड्थ 1.5 मीटर, मतलब होल पूरी टोटल कितना है, उसमें से जो ये सब्ट्रैक्ट करके आए ये आपको थोड़ा ध्यान से करना पड़ेगा क्योंकि इसमें क्वांटिटी सेम नहीं थी, तो वो हमें करके फिर उसको माइनस करना। अब आप इनका मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर लेना, ठीक है। तो आपने आंसर निकाल के लेके आना, इसका आंसर मैं नहीं निकाल रही हूँ, क्लियर। यू विल फाइंड द आंसर, वी विल टेल यू कि आपका आंसर सभी का सेम आता है कि डिफरेंट डिफरेंट आता है, ओके। तो नेक्स्ट सम, इन द गिवन फिगर देयर इज स्क्वायर ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर, पूरा 14 है यहाँ से यहाँ तक। एरिया ऑफ शेडर रीजन निकालना है। अब एरिया ऑफ शेडर रीजन में से हम ये चारों सर्कल देखो शेड किया हुआ है, क्या शेड किया हुआ है, ये सर्कल में से चारों सर्कल निकाल के बाकी एरिया शेड किया हुआ। तो हम ऐसा करेंगे, पहले हम लिखते हैं साइड ऑफ स्क्वायर दैट इज 14 सेंटीमीटर, क्लियर। अब आपके पास आ गया है 4 सर्कल हैं, इसका मतलब जो है डायामीटर निकालेंगे पहले। तो 1 सर्कल का कैसे आएगा, ये देखो पूरा मिडल में प्रॉपर है, तो हमारे पास 14 डिवाइड बाय 2 कर लेते हैं, तो 7 मीटर आपके 7 सॉरी सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर आपके पास आ गया सर्कल का डायामीटर। तो हम उसका रेडियस निकाल लेते हैं, 7/2 आ गया आपके पास रेडियस। अब आपके पास रेडियस है, साइड ऑफ स्क्वायर है, तो हम एरिया निकालने के लिए हमारे पास एनफ थिंग्स हैं, बिकॉज अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला वी नीड दैट, ओके। तो हम क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ, हम सीधा ही करते हैं फिर शेडर रीजन। जब आपने शेडर रीजन का निकालना है, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस 4 इंटू एरिया ऑफ सर्कल आएगा ना, बिकॉज 4 सर्कल्स आर देयर एंड ऑल सर्कल्स आर सेम। एरिया ऑफ स्क्वायर आ जाएगा 14 इंटू 14 माइनस 4 इंटू एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई की वैल्यू फिल कर देते हैं 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2। दिस 7 विल कट विद दिस, ये इसके साथ कट कर लो, तो आपके पास बच गया 14 14 जा 196 एंड 22 7 जा सॉरी 7 हाँ 22 7 जा गया आपके पास 154। तो आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग 42 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेम शेडर रीजन, एरिया ऑफ स्क्वायर टोटल आ गया, ये चारों का सर्कल्स का आपका एरिया माइनस कर देंगे, तो ये शेडर रीजन का आ गया आपके पास। ये डायामीटर कैसे निकाला, बिकॉज पूरी साइड 14 है, तो ये हाफ 7 7 आएगा, तो उसका रेडियस 7/2 मतलब 7 का भी हाफ, क्लियर, ओके। नेक्स्ट 8th सम, एरिया ऑफ शेडर पोर्शन, सेम एरिया ऑफ शेडर पोर्शन निकालेंगे। ये इसको रेक्टेंगल को हम ले लेते हैं, ये वाली रेक्टेंगल जो है ये 1 आ जाएगी, सॉरी ट्राइंगल, फुल इज रेक्टेंगल, ये सारी ट्राइंगल्स बनी है, इसमें 3 ट्राइंगल्स हैं, फुल रेक्टेंगल है। तो शेडर का एरिया निकालने के लिए क्या करोगे, एरिया ऑफ शेडर रीजन, ये तो सो इजी है आपके पास, आप करोगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल 1 प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल 2 प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल 3, क्लियर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल length of rectangle, this one area of rectangle you know na, length into breadth. Now length is 9 plus 5 14, breadth is 4 plus 6 from this side 10. Area of rectangle length into breadth
that is 14 into 10. Now area of rectangle 1, rectangle 1 कौन सी ली थी हमने, ये वाली, and triangle area of triangle is half into base into height. बेस जिसको मर्जी ले लेते हैं, हाइट जिसको मर्जी ले लेते हैं, बिकॉज चाहे अगर हम 6 को बेस लेंगे तो हाइट 8 आएगी, अगर 8 को बेस लेते हैं तो हाइट 6 आएगी। क्लियर? तो 8 इंटू 6 प्लस एरिया, ये वाले रेक्टेंगल टू ली थी तो ये वाला आपके पास उतना 6 है तो ये वाला बाकी 4 ही आएगा बिकॉज टोटल इज 10। तो हाफ इंटू 5 इंटू 4 प्लस अब ये जो बची है इसका आ गया हाफ इंटू 9 इंटू 6 और ये वाला 2 कट हो जाएगा इसके साथ, जिसके मर्जी साथ कट कर दो, ये वाला 2 भी कट हो गया, ये भी 2 कट हो गया। क्लियर? ये बन गया आपके पास 140 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 8 3 24 प्लस 10 प्लस ये बन गया आपके पास 27। इसको ऐड कर दो, इसमें से माइनस कर दो, ये आपके पास आ जाएगा। तो इसको ऐड करके आप 24 प्लस 10 34, 34 प्लस 27 61, करके देख लो, 34 27 ये 61, 61 को माइनस कर दो 140 में से 79 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? फॉर दिस सम you should know the area of rectangle and area of triangle, half into base into height and length into breadth. Okay. In the ninth sum, we need to calculate the missing measurement of each trapezium. अब हमें ट्रेपेजियम का एरिया लिख लेते हैं हम, इसका किसके इक्वल होता है, फॉर्मूला एक बार लिख लेते हैं। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हाफ इंटू, अब ट्रेपेजियम की शेप कैसी होती है, इफ यू रिमेम्बर, ये ऐसे होती है, ये जो लाइंस पैरेलल होती हैं, ये आपके पास यहाँ पे कुछ हाइट दी होती है जिसको हम एल्टीट्यूड भी बोलते हैं, ये 2 लाइंस पैरेलल होती हैं, इनका सम होता है सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, इसको एल्टीट्यूड भी कह लेते हैं। इसमें से जो जो भी मिसिंग है हम इस फॉर्मूला में फिल करके निकाल सकते हैं। क्लियर? ए पार्ट में आपको एरिया गिवन है 136, पैरेलल साइड में से दोनों साइड्स गिवन है तो दोनों का सम कर लेते हैं, एल्टीट्यूड पता नहीं है तो एच लिख लेते हैं, तो ये आपके पास सिंपली आ जाएगा 34 इंटू एच, देन यू विल कट इट, इसके बाद एच इधर रखेंगे 136 डिवाइड बाय 17, तो 17 के टेबल में तो 136 आता ही है 8 पे। अब अगर आपको 17 का टेबल आता है तो डायरेक्टली लिख सकते हो, अदरवाइज आपको डिवाइड करके चेक करना पड़ेगा। क्लियर? अब इसमें से ही अगर ये मिसिंग हो तो भी आप निकाल सकते हो, अगर एरिया मिसिंग है तो सीधा फॉर्मूले में फिल करना है। तो बी एंड सी पार्ट आई होप यू कैन डू, मस्ट ट्राई एट होम एंड देन वी विल डिस्कस। अगर आपके नहीं होते तो गलत करो सही करो, यू विल ट्राई देन वी विल डिस्कस। ओके, अदरवाइज तो आप फिर सारे सम मेरे से ही करवा लेते हो। क्लियर? अब इसमें आ गया रम्बस, अब इसके लिए हमें रम्बस का एरिया पता होना चाहिए। तो रम्बस का एरिया होता है, रम्बस कैसे होती है, इसमें हम ना डायगोनल ऐसे इसके साइड से इक्वल होती हैं बट इसके डायगोनल इक्वल नहीं होते, ये वाला डिफरेंस होता है इसमें, ये वाली साइड्स इसकी इक्वल होती है। तो इसका पेरीमीटर तो सिंपल सेम एज स्क्वायर होता है, इसका पेरीमीटर तो सिंपल ही निकाल लोगे बिकॉज इन ए पार्ट पेरीमीटर बोला है 4 इंटू साइड लिख लेते हैं, साइड गिवन है 4 8 जा 32 आपके पास आ जाएगा, ये आपका ऐसे ही आ जाता है इसका। तो ठीक है, अब इसमें जो एरिया होता है रम्बस का वो आपके पास फॉर्मूला होता है हाफ इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2, ये वाला फॉर्मूला होता है। अब इसमें डायगोनल दिया हुआ है आपको 1 8 दिया हुआ है, दूसरा 10 दिया हुआ है, तो आप इसको 40 आपके पास आंसर आ गया। इसके लिए आपको फॉर्मूलाज आने चाहिए बस, और तो कुछ नहीं है खास। ठीक है, तो सेम इसमें आप बेस एंड अल्टीट्यूड, एक इसका फॉर्मूला होता है बेस इंटू अल्टीट्यूड भी होता है, इसका 2 फॉर्मूले होते हैं एरिया के, अगर तो डायगोनल दिए हैं तो हाफ इंटू d1 d2 होता है, अगर आपको ये डायगोनल नहीं दिए तो बेस इंटू हाइट होता है। ठीक है,
अब इस सम में बेस इंटू एल्टीट्यूड हाइट वो एक ही बात है। तो आपको 6 मीटर दिया है, तो 6 मीटर को हम लिख लेते हैं 600 सेंटीमीटर। तो ये आपको दिया है 600, h आपको निकालनी है। अब ये बात याद रखनी पड़ेगी कि हम बस का 2 टाइप्स के एरिया निकाल सकते हैं। अगर तो डायगोनल दिया है तो हाफ इंटू d1 d2, अगर बेस इंटू हाइट दिया है तो वो निकाल लो। ये दोनों ही हम बस के हैं, मतलब एक ही चीज का एरिया फाइंड करने के लिए दो अलग अलग फॉर्मूलाज हैं अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। ओके, तो आफ्टर दैट आप इसको h को ऐसे डिवाइड कर लोगे उधर ले जाके, ये हो जाएगा। नेक्स्ट, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल PQRS एज शोन इन द फिगर। अब इसमें ये तो वेरी सिंपल है, इसको ट्राइंगल 1 ले लोगे, इसको ट्राइंगल 2 ले लोगे, एरिया उसका प्लस हो जाएगा। एरिया किसका निकालना है आपने, PQRS का। ये आ जाएगा आपके पास हाफ इंटू इसका बेस है 12, हाइट है 4, प्लस इसका बेस तो सेम ही है 12, हाइट इसकी 8 है। तो दोनों में कट कर लो, कटिंग यहाँ पे हो रही है, तो आपके पास आ गया 12 2 24 एंड 48, 72 आपका आंसर। सिर्फ आंसर नहीं निकालने, हमने पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। नेक्स्ट आ गया फाइंड द एरिया इन पेरीमीटर। पेरीमीटर वेरी इजी, सम ऑफ ऑल साइड्स। सम ऑफ ऑल साइड्स में आ जाएगा 5 5 5 8 3, ये सभी को मिला के आपका आ गया पेरीमीटर। ओके, एरिया में आ जाएगा आपके पास ये वाली जो ट्राइंगल है, इसका एरिया निकाल लो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, प्लस ये जो है आपके पास आपको दिख रही है ना, ये ऐसे, ये क्या होती है, ट्रेपेजियम पैरेलल साइड्स हैं। सम ऑफ पैरेलल साइड्स हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स 5 + 8 इंटू हाइट 4। क्लियर? तो इसको आप निकालोगे, यू विल फाइंड द आंसर 15/2 प्लस यहाँ पे आ गया, ये 4 से कट हो जाएगा, 13 2 26, ये बन गया 7.5 + 26 एंड इसको आप ऐड कर लो। पॉइंट वाली आपको आनी चाहिए, अगर आपको नहीं आती तो ये ऐसे 0 लगा लेते होते हैं, ऐसे उसको कर लो। ये नहीं कि 75 प्लस कर दो 26 में, तो आंसर कुछ और आ जाएगा, फिर मार्क्स भी उड़ जाते हैं। क्लियर? ओके, 13 सम जैसे हमने एक और सम किया है, ये सेम है ना। एडजॉइनिंग फिगर रेक्टेंगल एंड स्क्वायर इज गिवन। तो आपके पास 2 डायग्राम्स गिवन है, 2 सम है इसके। पहले हमें एक सम करते हैं ये वाला, इसमें ये शेडर पोर्शन का हमने निकालना है। तो एरिया इसका निकालना है शेडर पोर्शन का। अब इसमें रेक्टेंगल गिवन है, तो टोटल पहले एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालेंगे, उसमें से माइनस करेंगे ये वाले ट्राइंगल 1 एंड ये इधर से आगे ट्राइंगल 2। एरिया ऑफ ट्राइंगल 1 प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल 2। एरिया ऑफ रेक्टेंगल 18 इंटू 10 माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल 1 हाफ इंटू बेस इंटू हाइट प्लस हाफ इंटू बेस इंटू, अब देखो ये वाला 8 आएगा, इधर वाला ई भी 8 आएगा, बिकॉज ये टोटल 18 है एंड इतना यहाँ तक 10 है, तो बाकी बचा 80 आएगा। ये इसको कटिंग कर दो, इसको भी कर दो, ये 180 आ गया, यहाँ पे 30 आ गया, यहाँ पे 40 आ गया, 70 आ गया। 180 में से आपका 70 माइनस हो के 110 आपके पास आंसर आ जाए। ये तो अभी मेरे ख्याल से आपको प्रॉपर क्लियर हो गए होंगे एरिया ऑफ शेडर पोर्शन निकालने का। सेम इसमें स्क्वायर गिवन है, तो सेम एरिया ऑफ शेडर पोर्शन आप निकाल लोगे एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के, माइनस यहाँ पे 3 ट्राइंगल्स बनेंगे 1 2 एंड 3, ये तीनों का
ए आपको माइनस कर लेना है, तो इसके साथ आपका सम हो जाएगा। आपको पहले स्क्वायर का एरिया निकाल लेना है, उसमें से तीनों का माइनस कर देना है, जो आपके पास जो बचेगा ये लंबी वाली ट्राइंगल का आ जाएगा इसका शेड। क्लियर? I hope all understand all the sums, all the concepts and all the formulas very clearly। ये वाला सम आपने ट्राई करना है, ये मैं नहीं निकाल रही हूँ, बिकॉज सारे सम थोड़ा मैं निकाल के दूंगी आपको, आपको भी थोड़ा बहुत करना है। ओके, सो आई होप ऑल विल क्लियर विद ऑल द टॉपिक्स ऑफ दिस एक्सरसाइज। तो मिलते हैं स्कूल में, अगर किसी को कोई डाउट होगा तो वहाँ पे हम दोबारा से सम करके क्लियर कर लेंगे। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।